Hello students, we have already studied this chapter Vasuvayas Comes Alive. Today we will discuss the exercises. If you have not read the chapter yet, you can go on my channel's playlist, or I have attached the link of that video in the description of this video. You can directly click on the link and watch that video. हम पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, वसुवायस कम्स अलाइव. आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. जिसने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकता है. वैसे मैंने इस चैप्टर के वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं. डायरेक्टली क्लिक कर लीजिए लिंक पर और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. ओके, now let's start reading the exercise, discussing the exercise, understanding the text. A. Mark these sentences as true or not true. If a sentence is not true, write the correct sentence in your notebook. That morning was not hot than usual. वो दिन ज़्यादा गर्म नहीं था. अक्सर जितना गर्म होता था दिन उतना गर्म नहीं था. This is true or false? True. Next is, some people noticed that the sun looked hazy. कुछ लोगों ने नोटिस किया कि सूरज हेजी दिख रहा है. कुछ लोगों ने नोटिस किया था या सिर्फ ओल्ड मैन ने नोटिस किया था? What is the correct answer? This statement is not true. The correct answer is, the old man noticed that the sun looked hazy. Only the old man noticed. Okay? The people shook their head and turned their backs. लोगों ने जब देखा तो वो चले गए वहां से, उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया. The old man pointed to the volcano. The people looked and started to run. जब उस बूढ़े आदमी ने वोल्केनो की तरफ पॉइंट आउट किया तो लोग उसे देखकर भागने लगे. नॉट ट्रू. दे डिडंट रिएक्टेड. उन लोगों ने बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं किया था. क्या होता? द ओल्ड मैन पॉइंटेड टू द वोल्केनो. द पीपल लुक्ड, शुक देयर हेड एंड टर्न देयर बैक्स. उन्होंने वोल्केनो की तरफ मुड़कर देखा, अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर वापस चले गए. उनको कोई फर्क नहीं पड़ा वोल्केनो को देखकर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ नंबर इज, द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ स्टेड इन देयर हाउस इन द टाउन. वो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ शहर में ही अपने घर में रहने का उन्होंने डिसाइड किया. द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट ट्रू? नॉट ट्रू. दे लेफ्ट देयर होम. The old man and his wife decided to leave the town. Correct statement क्या है कि उन्होंने अपना घर छोड़ने का डिसाइड किया. The old man and his wife decided to leave the town. Question number 5. A woman and her child took shelter in their house. एक औरत और उसके बच्चे ने अपने घर में शेल्टर लिया. Not true. As the old man and his wife were leaving the town, they saw a man calling out to her children to come inside the house. क्वेश्चन क्या था कि एक औरत और एक बच्चे ने उनके घर में आसरा लिया, शेल्टर लिया? नहीं, वो लोग तो अपना घर छोड़कर जा रहे थे. वो लोग अपने घर में जा रहे थे. Okay. Sixth question. The old man's wife did not believe his terrible prediction. क्या उस बूढ़े आदमी की वाइफ उसके predictions पे, वो जो अनुमान लगाता था उस पे विश्वास नहीं करती थी? Not true. वो क्या करती थी? वो बिलीव करती थी अपने हस्बैंड के predictions पे. The old man's wife believed his predictions. Okay. Next question is, the town was buried under thick ash and mud. True. वो शहर राख और मिट्टी के नीचे दब गया. ओके.
Next is answer the questions. Answer these questions. First question is, why was the sun hazy in the sky? The sun was hazy because of the snow coming out of the volcano and because of the terrible heat. Okay? The next question is, how did the old man know that the volcano was going to erupt? उस बूढ़े आदमी को कैसे पता था कि volcano फटने वाला है? He somehow knew that the earthquake that had happened a few months ago and the smoke that was coming out of the volcano were somehow connected. That is how he realized that the volcano was going to erupt. Now come to question number 3. The old man shouted to his wife and pulled her roughly to her feet. Why did he not speak to her more gently? क्यों उस बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ को बड़े ही रूखे तौर पे जोर से खींचकर उसके पैरों पे खड़ा कर दिया? क्यों नहीं उसने उससे सॉफ्टली जेंटली प्यार से बात की? He knew that the volcano would erupt in a few moments and they had very little time to flee the place. क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में वोल्केनो फटने वाला है और उसके पास बहुत कम टाइम था भागने के लिए. ओके, नाउ कम टू द सी सेक्शन. लुक एट दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. कुछ ब्लू कलर में देखिए आपको लाइन्स दिए हुए हैं टेक्स्ट से, स्टोरी से ये लाइन्स दिए हुए हैं और उस पे कुछ क्वेश्चंस है, उस लाइन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उस लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. फर्स्ट लाइन क्या है आपका? द मैन डिड नॉट लाइक द मैसेजेस ऑन द वॉल. आदमी को दीवारों पे लिखा हुआ मैसेज पसंद नहीं था. क्वेश्चन क्या है फर्स्ट उस पे? व्हाई डिड द मैन नॉट लाइक द मैसेज. उस आदमी को दीवारों पे लिखा हुआ मैसेज क्यों नहीं पसंद था? आंसर है ही डिड नॉट लाइक द मैसेजेस बिकॉज ही थॉट दे वेर बोरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू. उसने क्या किया? ही रोट अ शॉर्ट पोएम एड्रेसिंग द वॉल एंड commenting on how surprising it was that it had not yet fallen under the weight of the boring messages. Okay, next question is statement hai, why aren't they listening to me? Though the thought the man worriedly. ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो आदमी परेशान होकर ये सोच रहा था. Why was the man worried? वो आदमी परेशान क्यों था? He was worried because he realized that the volcano would erupt and bury the people and the city in ash. Did he soon know why they were not listening to him? Second question. Did he soon know why they were not listening to him? Yes, he realized that the people were not worried because they were used to the vociferous rumbling and sweeping out snow from time to time. Third question, statement है, with luck we will be safe in the house. किस्मत होगी तो हम अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे. क्वेश्चन नंबर ए है उस पे. Who said this and to whom? किसने किससे ये कहा? A woman on the street of the city gate said this to the old man and his wife. Question number B. What were the old man and his wife doing when this line was spoken? बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ क्या कर रहे थे जब ये लाइन उनसे कही गई? They were fleeing the city when this line was spoken. वो शहर से भाग रहे थे जब ये लाइन उनसे कही गई थी. Question number 4, statement is, but the others were wrong. Question number A, what were the
others wrong about? लोग किस चीज के बारे में गलत थे? They were wrong in thinking that the Vesuvius would not erupt. Question number B. Who was right in the end? The old man was right in the end. Question number 5 statement is, but the people of Pompeii were used to quakes and tremors. Question A, because they knew this, what did the people do when they saw Vesuvius explode? They went indoors as they usually did when Vesuvius rumbled. Question B, what did they not know? वो क्या नहीं जानते थे? They did not know that they and their city would soon be buried under 60 feet of ash and mud. Now come to structures. Preposition, direction and movement. Read these sentences. People wandered from stall to stall, buying, asking for price and talking. लोग एक स्टॉल से दूसरी स्टॉल जा रहे थे खरीदने के लिए, दाम पूछने के लिए और बात करने के लिए. इसमें फ्रॉम स्टॉल टू स्टॉल क्या बता रहा है? इट्स टेलिंग यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोग कैसे मूव हो रहे हैं एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, एंड दिस कॉलम ऑफ स्मोक केम आउट ऑफ द टॉप ऑफ माउंट वाइसुविस. स्मोक कहां से बाहर आ रहा है? ऑन द आउट ऑफ द टॉप. आउट ऑफ द टॉप. आउट ऑफ क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि माउंट वाइसुविस के ऊपर से धुआं निकल रहा है. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अवे फ्रॉम दैट ही शाउटेड. उससे हटकर उसने चिल्लाया. ओके, तो अवे फ्रॉम क्या बता रहे? इट्स ऑल्सो टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन. We have already learned about prepositions of place. हम prepositions के बारे में पढ़ चुके हैं, जगह के preposition के बारे में, जो कि जगह बताता है. in, at, behind, over. जैसे कि in the basket, कोई सामान है कि vegetables are in the basket, मतलब vegetable basket के अंदर है. I live at Mumbai. तो मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई में रहता हूँ. एट इज टेलिंग यू अबाउट द प्लेस. ओके, द टेबल इज बिहाइंड द चेयर. तो बिहाइंड क्या है? बता रहा है पोजीशन, जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि टेबल कहाँ है? चेयर के पीछे है. बिहाइंड पीछे है. द कंगारू जम्प्ड ओवर द फेंस. तो कंगारू कहाँ से जंप कर गया? फेंस के ऊपर से जंप कर गया. तो ऑल दीज प्रिपोजिशंस आर टेलिंग यू अबाउट द प्लेस, जगह के बारे में बता रहा है. एंड प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम, एट, इन, आफ्टर, टिल, फॉर. वी विल मीट एट 7 o'clock. हम 7 बजे मिलेंगे. आई विल सी यू इन द मॉर्निंग. तो हम कब मिलेंगे? सुबह में मिलेंगे. डोंट प्ले आफ्टर 6 o'clock. 6 बजे के बाद नहीं खाना है. ओके, आफ्टर. फिनिश योर होमवर्क टिल संडे. संडे तक तुम्हें अपना होमवर्क फिनिश कर लेना है. यू हैव टू वर्क फॉर 1 week. तुम्हें एक सप्ताह के लिए काम करना है. ओके, सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर टेलिंग यू अबाउट टाइम. ऑल दीज प्रिपोजिशंस यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस, इस सारे सेंटेंस में जो प्रिपोजिशंस इस्तेमाल हुए हैं, एट, इन, आफ्टर, टिल, फॉर, ये सारे क्या है? टाइम के लिए यूज हुए हैं. पहले जो सारे इन, एट, बिहाइंड, ओवर यूज हुए थे, वो क्यों हुए थे? प्लेस के लिए यूज हुए थे. ओके, तो ये सारे प्रिपोजिशंस प्लेस के लिए यूज हुए हैं. ये सारे प्रिपोजिशंस टाइम के लिए यूज हुए हैं. देयर आर अदर प्रिपोजिशंस दैट शो डायरेक्शन एंड मूवमेंट. कुछ और प्रिपोजिशंस हैं जो कि डायरेक्शन बताते हैं, दिशा और मूवमेंट ऑफ
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह की. दीज आर टू, फ्रॉम, इन टू, ऑन टू, आउट ऑफ, डाउन, थ्रू, अवे फ्रॉम, टूवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग, ओवर, एक्सेट्रा. ये सारे प्रपोजिशंस हैं जो कि मूवमेंट और डायरेक्शन बताते हैं, दिशा और एक जगह से दूसरे जगह हिलने डोलने वाली मूवमेंट को बताते हैं. ओके, तो आपको कंप्लीट करने सेंटेंसेस कुछ इस टाइप के प्रपोजिशंस को यूज करके. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, जॉन विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस नेक्स्ट वीक. जॉन अगले सप्ताह इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा है. ओके, द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द स्विमिंग पूल. कहाँ डाइव कर गए वो? स्विमिंग पूल के अंदर डाइव कर गए. तो यहां पे क्या फिल होगा? इनटू द स्विमिंग पूल. ओके, इनटू. Next question is, Geena pointed dash the window. Everyone turned and looked where she pointed. गीना ने किसकी तरफ पॉइंट किया? विंडो की तरफ. तो क्या होगा? Towards the window. Towards. क्या हो गया? Towards the window. गीना pointed towards the window. गीना ने विंडो की तरफ पॉइंट आउट किया और and everyone turned and looked where she pointed. और सब लोग मुड़कर देखे कि वो कहाँ पॉइंट आउट कर रही है. We waved goodbye as the train slowly pulled out of the railway station. हमने हाथ हिलाकर बाय बाय किया जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली. तो क्या होगा? आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन. आवर जर्नी हैड बिगन एट लास्ट. हमारा सफर शुरू हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी विल नीड अ बोट टू सेल अक्रॉस द रिवर. क्या होगा? रिवर को पार करने के लिए हमें बोट चाहिए. अक्रॉस द रिवर. क्या फिल करेंगे? अक्रॉस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग. रिविजन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. यहाँ पे रिविजन है, कुछ रिविजन एक्सरसाइजेस दिए आपको टेंस पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पे. We have learned that the simple present tense is used to show action. हमने पहले भी पढ़ा है कि simple present tense action show करने के लिए यूज किया जाता है. किस टाइप के actions को? That are repeated और actions that are true for all times. वैसे actions के लिए कि जो बार बार दोहराए जाते हैं, मतलब जो habitual है, जो कि आदत है आपकी, हर दिन आप करते हैं, वैसे actions को दिखाने के लिए हम लोग, वैसे actions के बारे में बात करने के लिए हम simple present tense को यूज करते हैं. या फिर ऐसे एक्शंस को दैट आर ट्रू फॉर ऑल टाइम्स, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं. जैसे सन राइजेस इन ईस्ट. तो सूरज कहां उगता है? हमेशा ही ईस्ट से उगता है. गीता इज अ होली बुक. गीता क्या है? एक बहुत ही होली किताब है, मतलब बहुत ही पूजा पाठ वाली किताब है. ओके, ऐसे ही जैसे ताजमहल इज इन आगरा. ताजमहल आगरा में, सभी जानते हैं कि ताजमहल आगरा में, और ताजमहल आगरा से कहीं नहीं जाने वाला. तो ये सब क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ है. ओके, ये हम सब जानते हैं. तो यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कि अगर हम कहें कि हम रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आई डेली रीड न्यूज़पेपर. तो ये क्या है? आपकी हैबिट है. डेली यू रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. आई डेली रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. तो ये सब क्या आपके एक्शंस हैं जो कि डेली होते हैं, रिपीटेड एक्शंस हैं. तो ऐसे एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि हमेशा के लिए सही है, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. ओके, वी ऑल्सो लर्न दैट we use the present progressive tense to talk about an action that is taking place now or around the present टॉकिंग टाइम. हम ऐसे एक्शंस के बारे में प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं जो कि अभी हो रहा हो, या फिर जिस टाइम हम बात करें उस टाइम चल रहा हो. टू शो दिस वी यूज द फॉर्म इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. जितने आईएनजी वाले प्लेइंग, सिटिंग, ईटिंग, रीडिंग, ऐसे वाले आईएनजी लगाकर जब हम वर्ब के फॉर्म को यूज करते हैं तो वो किस चीज में होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जैसे मैं अभी कहूं कि आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूं. क्या कर रही हूं? आई एम टीचिंग. मैं, इसका मतलब क्या होगा? कि अभी मैं पढ़ा रही हूं. दिस वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. ओके, प्रोग्रेस में है ये काम, अभी हो रहा है. ओके,
कंप्लीट these sentences using the correct form of the verb in the bracket. अब इन दोनों फॉर्म को आपको यूज करके ब्रैकेट को फिल करना है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज माई ग्रैंड मदर वेक्स अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग. मेरी ग्रैंड माँ रोज सुबह 5 बजे उठती है. ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. रोज वो ये काम कर रही है. डेली एक्शन, रिपीटेड एक्शन है. हर दिन ये काम वो करती हैं. डेली 5 बजे ही उठती हैं. सो दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट इज आई डैश फॉर माई हिंदी टेस्ट टुमारो. मैं अपने हिंदी टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूं. प्रिपेयरिंग, क्या हुआ यहाँ पे? प्रिपेयरिंग. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई हिंदी टेस्ट टुमारो. मैं अपने हिंदी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं. यू आर स्टिल डूइंग इट. अभी कर रहे हो आप. ओके, तो क्या होगा? प्रिपेयरिंग, PREPARING, प्रिपेयरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइजिंग एवरी डे. फिर देखिए, हर दिन की बात हो रही है. हर दिन जो एक्शन हो रहा है वो क्या है? रिपीटेड मोड में हो रहा है. एक्सरसाइजिंग एवरी डे डैश अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. कीप यूज करके फिल करना है आपको. कीप्स अस हेल्दी. क्या होगा? कीप्स अस हेल्दी, KEEPS, कीप्स. एक्सरसाइजिंग एवरी डे कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश टू बी अ डॉक्टर. वो डॉक्टर बनने के लिए क्या हो रहा है? ट्रेनिंग ले रहा है. ट्रेन से आपको फिल करना है. इज ट्रेनिंग, वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है. ही इज ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग टू बी अ डॉक्टर. ही इज ट्रेनिंग टू बी अ डॉक्टर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वी डैश अ बर्थडे केक फॉर माई मदर. हम क्या कर रहे हैं? बर्थडे केक बना रहे हैं अपनी मम्मी के लिए. तो हम लोग अभी बना रहे हैं. वी आर मेकिंग. क्या होगा? वी आर making, MAKING, making. We are making a birthday card for mother. I cannot dash the letter on the table. मुझे चिट्ठी नहीं मिली टेबल पे. I cannot find the letter, FIND, find the letter on the table. Okay, सारे sentences fill हो गए. Now next is word in use. Word family, piece of words. Read this sentence. A flake of ash fell softly on his tunic. एक फ्लेक, स्नो फ्लेक होता है ना, वैसा फ्लेक आकर कहाँ गिरा? उसके ट्यूनिक पे, उसके कपड़े पे सॉफ्टली आकर गिरा. The word flake shows that the ash is soft, light and small. Flake word क्या बताता है? कि जो ash है, जो राख है, वो क्या होती है? Soft होती है, मुलायम होती है, बहुत ही light weight होती है, हल्की होती है और बहुत छोटी होती है. Okay? All the words in the box are about part of something. For example, bits of wood. Some are small parts, others are large. Place each of these words in the correct column. कुछ large words हैं, कुछ small चीज़ों के लिए यूज़ हो. इनमें से कुछ words जो है ना, जितने भी कॉलम में दिए हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, कुछ small चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं. आपको दोनों को सेपरेट कॉलम में लिखना है. पहला भी हमने पढ़ा फ्लेक. फ्लेक क्यों होता है? स्मॉल चीज़ के लिए यूज़ होता है. FLAKES, फ्लेक्स. ओके, देन नेक्स्ट इज चंक. चंक किस में आएगा आपका? चंक बड़े चीज़ के लिए यूज़ होता है. CHUNK, chunk of wood, chunk of bread. बिट्स छोटे छोटे चीजों के लिए यूज होता है. बिट आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा. बिट. ग्रेन क्या? ग्रेन तो एक दाना होता है अनाज का. तो ग्रेन क्या? बहुत स्मॉल सा चीज होता है ग्रेन. स्ट्रिप्स बड़े बड़े टुकड़े आपके किसी चीज के स्ट्रिप्स कहते हैं. स्कूप, एक चम्मच पूरा निकालो तो वो क्या हो गया? स्कूप हो गया. ओके, स्कूप्स. फ्लेक, बिट, ग्रेन आपके क्या हो गए? छोटे. लार्ज में क्या हो गया? चंक ऑफ ब्रेड, स्ट्रिप ऑफ समथिंग, पेपर. स्कूप ऑफ आइसक्रीम, आई एट अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम. ओके, so these words are correctly filled. Now choose the correct word from the table on the previous page to complete these phrases. अब पिछले पेज में जो आपके वर्ड्स थे उनको आपको फिल करना है. टू, देखिए अभी मैंने बताया स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम,
what you will fill in this? 2 scoops of ice cream. SCOOPS, scoops of ice cream. Soft flake of snow. FLAKES, flakes of snow. Long strip of cloth, कपड़े का strip. Long strip of cloth. A large chunk of meat. CHUNK, chunk of meat. अभी हमने chunk पढ़ा. So many small dash of paper. Grain of paper. Okay? Chunk of meat. हो गया, finish. Bits of paper या फिर bits, grain use हो चुका है. What we will write in the last one? Bits of paper. Okay? Small bits of paper. Verbs to describe natural events. अब इसमें कुछ verbs दिए हैं जो natural event के लिए, nature में जो events होते हैं उसको describe करने के लिए लिखे हैं. आपको इनको use करना है और sentence को fill करना है. Complete these sentences by using the correct word from the box and the hint in the bracket. Okay, hint जो दिया है bracket में उसको use करके और words को use करके fill करना है. First is the pollution in the village is because of the smoke sweeping out of factories. Okay. Second क्या है? Dash and the cloud of ash spread across the sky. क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? A volcano erupted. A volcano यूज करना, Iceland यूज करना है. A volcano erupted in Iceland and the cloud of ash spread across the sky. क्या लिखेंगे हम? A volcano erupted in Iceland and the cloud of ash spread across the skies. Next is I feel that there may be a storm tonight. I hear और thunder use करना है. I hear thunder rumbling. देखिए rumble word है. Hear thunder rumbling. THUNDR, thunder rumbling. RUMBLING. Fourth is water came, tap open. Water came, swipe through, steam out लिखा है. The water came, swept, steam out of tap when I opened it. Okay? Streaming out. Stream है तो stream मतलब क्या होता है? धारा, बहना. Streaming out, STREAMING, streaming out of the tap when I opened it. Okay? Next question is as the tornado dash forest uprooted many trees. As the tornado swept through. As the tornado swept, SWEPT, swept through the forest, the FOREST, forest, it uprooted many trees. Okay? It uprooted many trees. Okay? Next is functions. Giving warnings. The old man warned the people of the town that the volcano was about to erupt. बूढ़े आदमी ने सारे लोगों को चेतावनी दी थी कि वोल्केनो फटने वाला है. When we want to warn people that something is not safe, we often use sentences with if like this. जब हम किसी को warn करना चाहते हैं तो हम sentences use करते हैं, कुछ वाक्य use करते हैं if लगाकर. किस तरह से? इस तरह से. If you sit in the rain, you will catch a cold. अगर तुम बारिश में बैठोगे तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा. We also use don't or else like this. Don't sit in the rain
और यू विल गेट कोल्ड, बारिश में मत बैठो या फिर तुम्हें जुकाम हो जाएगा, ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग। या फिर आप इस सेम सेंटेंस को ऐसे कह सकते थे, डोंट सिट इन द रेन और एल्स यू विल कैच द कोल्ड, बारिश में मत बैठो वरना तुम्हें जुकाम हो जाएगा। राइट वार्निंग सेंटेंसेस यूजिंग इफ और डोंट और एल्स, आपको ये सारे यूज करके क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। टच हॉट पैन स्लैश बर्न हैंड्स, इफ यू विल टच हॉट पैन, इफ यूज करना है आपको, इफ यू टच अ हॉट पैन यू विल बर्न योर हैंड, ओके। इफ यू टच अ हॉट पैन कॉमा यू विल बर्न योर हैंड। सेकेंड क्वेश्चन, राइड द ओल्ड बाइसिकल विल फॉल ऑफ, डोंट और यूज करना है आपको इसमें, डोंट राइड द ओल्ड बाइसिकल और एल्स यू विल फॉल ऑफ, ओके, या फिर और यू विल फॉल ऑफ ऐसे। नंबर 3, ईट ऑल दो स्वीट विल फेल इल, डोंट और या फिर डोंट और एल्स यूज करके आप लिख सकते हैं, डोंट ईट ऑल दो स्वीट्स और यू विल फील इल, या फिर डोंट ईट ऑल दो स्वीट्स और एल्स यू विल फील इल, फेल इल, ओके। Next question is don't leave now, miss the train. If you don't leave now, comma, you will miss the train. Don't go to sleep now, won't be able to wake up early. If you don't go to sleep now, comma, you won't be able to wake up early. These sentences are completed. Now come to next B part. When the warning is urgent, we say watch out or be careful. जब warning बहुत urgent होता है, आपको बहुत ज़रूरी होता है देना, तो आप watch out या be careful यूज़ करते हैं। Give urgent warnings using this hint. आपको कैसे आप किसी को urgent warning दे सकते हैं, यहाँ पे आप सीखिए। Spill the milk, careful यूज़ करना है इसमें। Be careful, don't spill the milk. There's a पॉट होल इन द स्ट्रीट, सड़क पे गड्ढा है, आप किसी को ये बोलना है तो कैसे कहेंगे, वॉच आउट देयर इज अ पॉट होल इन द स्ट्रीट, ओके। नेक्स्ट इज दैट्स वेरी वैल्यूएबल, केयरफुल यूज करना है, कैसे आप कहेंगे, बी केयरफुल दैट्स वेरी वैल्यूएबल। नेक्स्ट इज द बस इज अराइविंग, यू हैव टू यूज वॉच आउट द बस इज अराइविंग। Next is that doesn't belong to you, careful use करना है। How you will write, be careful, that doesn't belong to you, okay. This is also finished. Now come to last exercise, that is writing part. We use a paragraph to describe a topic or a set of actions. Each paragraph usually deals with one main idea or topic. We start a new paragraph for each new topic. यहाँ पे कुछ paragraphs दिए हैं आपको, आप यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द मार्केट प्लेस इन पॉम्फी, आपको छोटी सी कहानी लिखनी है पॉम्फी के मार्केट प्लेस के बारे में। ऑन द डे व्हेन माउंट वाइसुविस इरप्टेड, उस दिन के बारे में आपको अपनी कहानी बनानी है जिस दिन माउंट वाइसुविस फटा था, इरप्ट हुआ था, फूटा था वोल्केनो। द आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू, इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ लिखने में क्या करेगा, मदद करेगा। वॉज इट वेरी हॉट और कोल्ड, उस दिन गर्मी थी या ठंड थी। हाउ डिड द सन लुक, सन कैसा दिख रहा था, सन वॉज लुकिंग हेजी। वॉट वॉज द ट्रेडर्स डूइंग, ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, दे वर सेलिंग देयर आइटम्स, दे वर हॉकिंग फॉर देयर आइटम्स, वो लोग आवाज लगा रहे थे अपने आइटम्स के लिए, है ना। और फिर क्या हुआ, वॉट डिड दे हैव फॉर सेल, वो लोग क्या बेचने के लिए लाए थे। वॉट वेयर द सिटीजन्स डूइंग, सिटीजन्स क्या कर रहे थे उस दिन, सारे जो लोग थे उस शहर के वो लोग क्या कर रहे थे। वॉट डिड द ओल्ड मैन राइट ऑन द टाउन्स नोटिस बोर्ड, उस आदमी ने टाउन के नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर, और एक स्टोरी लिख सकते हैं खुद ब खुद, ओके।
अपने वर्ड्स में. सो दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी इशूज रिगार्डिंग एक्सरसाइज आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं अगर किसी भी तरह की एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम होती है. इफ़ यू लाइक द डिस्कशन, don't forget to like, subscribe and share the video. Okay, thank you for watching this video, guys.